Hello everyone and welcome back again to another fresh video of Ashu Talks. I hope you all are doing absolutely fine. So guys, in today's video I'm gonna tell you about IRC doubts. So I posted a video recently about infrastructure readiness check. So many of the students are giving TCS NQT June for the first time. So I will clear all your doubts regarding IRC. Many of the students commented on my previous video, so I will clear all your doubts in this video. So please watch this video till the end. And before starting the video, there are our two Telegram channels. You can join our Telegram channel. First is our official channel. You can join this. Here I post every update regarding exam, okay, and various off-campus drive opportunity for you, okay. And here I made TCS June NQT separate group for all of you candidate, so you can join this group and you can discuss about exam. You can discuss about if you have any query, you can clear a doubt of the other candidates. So please join. You will find the description, you will find the link in the description below. So please join this our Telegram group. This will be very helpful for you, okay. And here you can see on the screen, it is my YouTube channel. I post various off campus drive internship opportunity related videos, and I will give every update regarding TCS NQT. So please subscribe to my YouTube channel and also share with your friends who are giving TCS Smart Hiring, okay. So here you can see I have made a different playlist for TCS Smart Hiring. So if you want to know syllabus of TCS Smart Hiring, if you have various doubt regarding Smart Hiring, simply go to this playlist. You will get all the video from the Smart Hiring, okay. So that's it for the today's video. I will move on to our main topic for the today's video, okay. So here you can see there are various doubts regarding this. Here you can see I posted a video, TCS NQT June IRC test infrastructure readiness check, okay. So I posted this video, and I can see, you can see on the screen also, there are various comments regarding this. You have many doubts regarding this because many of the candidate are giving a first time exam. So I will clear all your doubts regarding this, okay. So first of all, what we will clear, so the doubt is it regular NQT और स्मार्ट NQT. सो बहुत लोगों को ये डाउट था दोस्तों कि रेगुलर एनक्यूटी है या स्मार्ट हायरिंग है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बात करने वाला हूँ, उसके जो डाउट्स है वो क्लियर करने वाला हूँ. फिर सेकंड आता है डिडंट रिसीव आईआरसी एग्जाम मेल, ओके. सो मेनी ऑफ द पीपल हैव डाउट दे हैवंट रिसीव्ड आईआरसी एग्जाम मेल. सो विल दे रिसीव इन दिस फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर, और व्हाट दे हैव टू डू. अगर अभी तक के आपको आईआरसी का मेल नहीं आया, एग्जाम का मेल, तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों. आपको क्या आगे जाके आईआरसी का मेल मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके बारे में हम बात करने वाले. साथ साथ व्हाट इफ आई डोंट गिव आईआरसी ऑन टाइम. तो दोस्तों ये जो डाउट था, ये बहुत लोगों को टाइम था. जैसे कि आप सभी को पता है, आईआरसी के लिए आपको एक टाइम स्लॉट दिया जाता है, एक पर्टिकुलर डेट दी जाती है, वहीं पे आपको आईआरसी लेना होता है. तो क्या आईआरसी उस टाइम के बाद दे सकते हैं क्या, ये डाउट था दोस्तों. फिर आता है इज इट मैंडेटरी टू टेक द बोथ आईआरसी एंड मेन एग्जाम इन द सेम सिस्टम. तो आपको जो आईआरसी की एग्जाम है और जो फाइनल एग्जाम होने वाली है आपकी टीसीएस जून एनक्यूटी, वो आपको सेम डिवाइस में लेनी है कि मतलब एक ही लैपटॉप में, एक ही कंप्यूटर में लेनी है, या डिफरेंट में भी ले सकते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं. फिर आ जाते हैं व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन आईआरसी एग्जाम. तो आईआरसी एग्जाम के क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले कि उसके क्वेश्चंस कैसे होने वाले, उसके कितने आंसर्स आपको सही करने, ये भी जो भी डाउट्स हो उसके आईआरसी एग्जाम से रिलेटेड, वो हम बात करने वाले. फिर आ जाता है व्हाट इफ आई मिस आईआरसी एग्जाम. तो बहुत लोगों का ये डाउट है कि मेरे पास लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, या मैं उस टाइम पे किसी वर्क में हूं, तो क्या अगर मैं आईआरसी एग्जाम मिस करता हूं तो क्या मैं फाइनल एनक्यूटी दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं, ठीक है. तो ये सभी जो आपके डाउट्स है, वो सभी डाउट्स मैं आज इसी वीडियो में क्लियर करने वाला हूं. उससे पहले दोस्तों, अगर आपके कोई भी डाउट क्लियर होते हैं आईआरसी इस एग्जाम से रिलेटेड, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले एंड मैं रेगुलर आपके लिए वीडियोस बनाता रहूं. अब बिना देरी किए हम आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पर. सबसे पहले आ जाता है इज इट रेगुलर एनक्यूटी और स्मार्ट एनक्यूटी, स्मार्ट हायरिंग, ओके. तो मैं आपको बता दूं, ये रेगुलर एनक्यूटी नहीं है दोस्तों. यहाँ पे बीटेक वाले स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते. ये सिर्फ स्मार्ट हायरिंग है. स्मार्ट हायरिंग में जिसने अप्लाई किया था दोस्तों, वही लोग इस पर्टिकुलर एनक्यूटी दे सकते हैं दोस्तों. उनको ही इसका हॉल टिकट आने वाला है, सभी चीजें. ये स्मार्ट हायरिंग है, रेगुलर एनक्यूटी नहीं है. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पर, मैंने यहाँ पे इसका वीडियो डाला था. टीसीएस स्मार्ट हायरिंग का मैंने वीडियो डाला था जब टीसीएस ने स्मार्ट हायरिंग स्टार्ट की थी. तो जिन्होंने उसका फॉर्म भरा था दोस्तों, उन सभी के लिए स्मार्ट हायरिंग हो रही है. ये रेगुलर अगस्त वाली एनक्यूटी या तो बाद दूसरी एनक्यूटी नहीं है, ये स्मार्ट हायरिंग है, ओके. फिर आ जाता है डिडंट रिसीव आईआरसी एग्जाम मेल. तो बहुत लोगों को दोस्तों अभी तक के आईआरसी एग्जाम का मेल नहीं मिला है. तो दोस्तों अगर आपने स्मार्ट हायरिंग का फॉर्म भरा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. डेफिनेटली आपको एग्जाम मेल जो है वो आने वाला है, क्योंकि आपने अगर सर्वे जो फॉर्म था स्मार्ट हायरिंग का दोस्तों, डॉक्यूमेंट था, फॉर्म था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अगर वो आपने फिलअप किया तो डेफिनेटली आपको आईआरसी एग्जाम मेल आ जाएगा. हो सकता है वो आधे लोगों को भेज दिया हो, आधे लोगों को भेजने का हो, ठीक है. ऐसा होता है, एक टाइम पे नहीं आता है, 2 से 3 दिन लगते हैं दोस्तों, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है
6 तारीख को, 5 से 6 तारीख को एग्जाम है, तो अभी भी आपके पास 4 से 5 दिन है। तो हो सकता है कि आपको कल भेज दे या आज ही भेज दे, इसलिए ये टाइम होता है, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर अभी तक के आपको आईआरसी का एग्जाम मेल नहीं मिला है तो वो आपको मिल जाएगा। ओके, व्हाट इफ आई डोंट गिव आईआरसी ऑन टाइम। दोस्तों ये डाउट बहुत लोगों का था कि हम आईआरसी अगर टाइम पे नहीं देते हैं तो क्या होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पे आप देखने मिल जाता है, इफ इट इज पॉसिबल इफ आई कुड माई टेस्ट एट 2:30 PM। इस तरह से बहुत लोगों ने बोला है कि उनका जो स्लॉट है वो स्लॉट पे टाइम नहीं दे पा एग्जाम नहीं दे पाएंगे, तो क्या वो बाद में एग्जाम दे सकते हैं क्या, मतलब थोड़े टाइम बाद। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी मुझे सेम तरह के डीएम बहुत सारे आए थे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये आईआरसी का जो मेल आया था आप सभी को, सिंपली यहाँ पे सबसे पहली चीज यहाँ पे मेंशन की जाती है दोस्तों, आप देख सकते हो, योर पार्टिसिपेशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस चेक इज मैंडेटरी स्टेप फॉर यू टू बी अलाउड टू टेक द एग्जाम रिमोट फ्रॉम होम। ठीक है, आईआरसी जो होता है ये एक मैंडेटरी स्टेप है, ये आप सभी को लेना जरूरी है। क्यों लेना जरूरी है? क्योंकि आप जो फाइनल एग्जाम लेने वाले हो, फाइनल एग्जाम में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे आप सभी को पता है ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो, तो आपका सिस्टम कंपैटिबल है या नहीं, या तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा। ठीक है, तो अगर आप आईआरसी दे देते हो एंड अगर आपको आईआरसी में कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है दोस्तों, तो आप अभी से वो क्लियर कर सकते हो, ताकि आपको फाइनल एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये चीज थी दोस्तों, आईआरसी मैंडेटरी है। अगर आप आईआरसी नहीं देते हो तो चलता है, लेकिन आईआरसी मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि आईआरसी प्लीज आप सभी दे दीजिए। जिसको भी मेन एग्जाम देना है वो आईआरसी प्लीज दे दीजिए, क्योंकि जो फाइनल एग्जाम में फिर बहुत लोगों को प्रॉब्लम आता है एंड उनका पेपर मिस हो जाता है, फिर उनका स्कोर नहीं मिलता है, बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। इसलिए अगर आप आईआरसी दे दोगे तो आपको फिर आगे कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि डाउट जो है आपका अभी के अभी क्लियर हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी अभी के अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो आईआरसी का आपको सबको अलग अलग डेट दी गई है, टाइमिंग दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले पहले क्या होता था, यहाँ पे आपको टाइम स्लॉट दिया जाता है, जैसे 2 PM से लेके 2:30 PM या 2 PM से 3 PM, 1 आवर का स्लॉट या 2 आवर्स का स्लॉट, इस तरह से आपको स्लॉट दिया जाता था। लेकिन इसकी वजह से क्या होता था, बहुत लोग उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होते थे या आईआरसी कंप्लीट नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनका टाइम स्लॉट दिया जाता था इसलिए। लेकिन अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको सिर्फ 2 PM दिया गया है, यहाँ पे कोई भी एंड टाइम नहीं दिया गया है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको जितना जल्दी पॉसिबल हो, जैसे अगर इनको 2 PM का टाइम दिया है, तो अगर ये 2 PM को ही आईआरसी कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होती है। लेकिन अगर हो सकता है कि कोई किसी काम में हो या कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, तो अगर वो 3 PM को देना चाहे या 3:30 को देना चाहे तो दे सकते हैं। ठीक है, दे सकते हैं, लेकिन सेफ साइड में मैं आपको बोलूं कि जो टाइम दिया गया है वही टाइम को दे दो। अगर हो सकता है, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप थोड़ा लेट भी दे सकते हो, लेकिन प्लीज इसको डिले मत कीजिए और इसको मिस ना कीजिए। ठीक है, तो आप आईआरसी मतलब 1-2 घंटे के अंदर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि 1.5 आवर्स के बाद या 2 आवर्स के बाद, तो दे सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना जल्दी पॉसिबल हो वो दे दीजिए। ठीक है, और ये आपको अपने सिस्टम से ही देना है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इज इट मैंडेटरी टू टेक द बोथ आईआरसी एंड मेन एग्जाम इन द सेम सिस्टम। ठीक है, तो आईआरसी की होता है, आईआरसी ये होता है ताकि आपको मेन एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आप समझ लो आईआरसी आप दे रहे हो कोई दूसरे लैपटॉप से या कोई भी दूसरे पीसी से, और मेन एग्जाम दूसरे पीसी से दे रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है आईआरसी टेस्ट लेने का। ठीक है, इसलिए आपको दोनों जो एग्जाम है, आईआरसी जो होने वाली है और जो मेन एग्जाम, दोनों ही एग्जाम आपको सेम डिवाइस से देनी है, सेम लैपटॉप से देनी है, सेम पीसी से देनी है। क्योंकि देखो, ये जो प्रॉब्लम आती है वो आती है डिवाइस की वजह से। ठीक है, अगर आपका जैसे कोई डिवाइस कंपैटिबल नहीं हो या कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने डिवाइस से देते हो तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मेरे डिवाइस में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं मैं एग्जाम देते टाइम, तो आपको फाइनल एग्जाम में ये प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। लेकिन अगर आप दूसरे डिवाइस में देते हो, फिर दूसरे डिवाइस में देते हो मेन एग्जाम, तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन यही है दोस्तों कि आपको सेम डिवाइस में आपको एग्जाम देना है, दोनों एग्जाम। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन आईआरसी एग्जाम, तो ये भी बहुत लोगों का डाउट था कि किस तरह के क्वेश्चन आपको आईआरसी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आईआरसी सिर्फ एक डेमो टेस्ट होती है, आईआरसी कोई एक एग्जाम नहीं होती है, मतलब एग्जाम बोला गया है उसको, लेकिन आईआरसी सिर्फ एक आपको चेक के लिए होती है। ठीक है, कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आपके सिस्टम में और एग्जाम में। ठीक है, आईआरसी कोई टेस्ट नहीं होती है, मतलब आईआरसी में अगर आप गलत भी आंसर देते हो, आईआरसी देखो, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको कहीं तो भी आपको दिखने यहाँ पे मिल जाता है। हाँ, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, नोट दैट दिस चेक इज ओनली टू इंश्योर योर सिस्टम कंपैटिबिलिटी फॉर टेकिंग द एग्जाम एट होम। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं, घर में एग्जाम दे रहे हैं, तो इसलिए आपकी जो सिस्टम की कंपैटिबिलिटी है वही चेक करने के लिए ये एग्जाम हो रही है। ठीक है, नॉट अ प्रैक्टिस टेस्ट फॉर एक्चुअल एग्जाम। ठीक है, एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चन पेपर पैटर्न विल बी डिफरेंट। तो यहाँ पे सिंपली मेंशन किया गया है कि यहाँ पे जो पेपर पैटर्न जो होने वाला है एक्चुअल एग्जाम का, वो भी डिफरेंट होने वाला है। तो आईआईएससी में कुछ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप कुछ भी आंसर कर सकते हो, उसका आपके मेन एग्जाम से कोई भी लेना देना नहीं है, सिर्फ आपकी सिस्टम कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए। ठीक है, ये आपको देखने मिल जाता है।
वी स्ट्रांगली रिकमेंडेड यू टू पार्टिसिपेट इन आईआरसी एज पर द गिवन शेड्यूल। आईआरसी में पार्टिसिपेट करना जरूरी है और शेड्यूल के हिसाब से मैंने जैसे कि आपको उसका समझा दिया, तो आई होप आपको वो सभी चीजें समझ में आई हो, ठीक है। और देख सकते हो आप यहाँ पे मैंडेटरी टू वेरीफाई योर कंप्यूटर लैपटॉप रेडीनेस टू टेक द ऑनलाइन एग्जाम सक्सेसफुली फ्रॉम योर होम। तो आप घर में सक्सेसफुली एग्जाम कंप्लीट कर सके, आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, इसलिए आप अपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे ये एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो यही बता दिया मैंने, क्वेश्चन की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन का कुछ भी आंसर कर सकते हो, वो बस आपका सिस्टम चेक करने के लिए है। व्हाट इफ आई मिस आईआरसी एग्जाम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप आईआरसी एग्जाम मिस करते हो तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है फाइनल एग्जाम के टाइम में। जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताता हूँ, मैंने अक्टूबर एनक्यूटी के टाइम भी बहुत स्टूडेंट को गाइड किया, फरवरी एनक्यूटी के टाइम, मार्च एनक्यूटी के टाइम, मई एनक्यूटी के टाइम। तो ठीक है, 4 एनक्यूटी का मेरे पास एक्सपीरियंस है, वहां से मुझे ये पता चला है दोस्तों कि बहुत लोगों को एग्जाम के टाइम में प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाती है। तो अगर आप आईआरसी दे देते हो तो वो जो चांसेस है प्रॉब्लम होने के वो जीरो हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, आईआरसी कंपलसरी है, आप सभी दे दीजिए ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हुए हो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या तो मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।